ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ شہر میں یوم عاشوراء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تاریخی بی بی کیلم جلوس میں زائرین اور عزاداروں کی کثیر شرکت۔ جلسہ یاد حسین اور شہدائے کربلا کا انعقاد۔ پولیس کے وسیع تر انتظامات۔ ریاست میں انتظامی سطح پر بڑے پیمانے پر تبادلے۔ سنجے جاجو ریاست کے نئے چیف سیکرٹری۔ سابق چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر۔ اندرما عوامی حکومت کی اولین ترجیح عوامی فلاح و بہبود۔ ویلفیئر اسکولز، ہاسٹلز اور رہائشی اداروں کی مرمت 1 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ زیر التوا بلوں کی فوری ادائیگی کی جائے۔ نائب وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ کانگریس حکومت دلتوں، قبائلیوں اور غریب کسانوں کی اسائن اراضیات پر قبضے میں ملوث۔ کسانوں کی رضامندی سے اراضی حاصل کریں، کے ٹی آر کا مطالبہ۔ گچھی بولی اے ایم بی فلائی اوور پر دلخراش سڑک حادثہ، اسکوٹر اور بلٹ گاڑی کا تصادم، 2 افراد ہلاک۔ آندھرا پردیش کے ماچرلا میں بھی حادثے میں حیدرآباد کے 4 افراد کی موت۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر غیر قانونی سونے کی منتقلی ناکام، 3 کروڑ 36 لاکھ روپے کے بسکٹ ضبط۔ دھوکہ دہی میں ملوث گولڈ مین سوریا بھی گرفتار۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 اور 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ۔ کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی۔ کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم۔ کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز۔ کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ۔ کیو میکس RF آرکیٹ، الکاپور مین روڈ۔ کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 اور 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارا ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 منتھس ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کریں، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر میں یوم عاشوراء عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تاریخی بی بی کا علم جلوس دوپہر علاوہ بی بی دبیر پورے سے برآمد ہوا۔ شیخ فیض کی کمان، یاقوت محل ٹاکس، اعتبار چوک، کوٹلے عالیجا، سردار محل، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجہ شاہ سے ہوتا ہوا براہ منڈی میرالم شام چادر گھاٹ پہنچا۔ تاریخی جلوس میں مختلف ماتمی تنظیموں اور گروہان کی جانب سے ماتم اور سینہ زنی کی گئی۔ نوحہ خوانی بھی ہوئی۔
علم کے جلوس کے دوران مختلف مقامات پر اہم شخصیتوں کی جانب سے ڈھٹی کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ مجلس کے رکن کونسل ریاض الحسن آفندی علاوہ بی بی سے ہی جلوس کے ساتھ موجود تھے۔ نظام ٹرسٹ کی جانب سے پرانی حویلی کے پاس علم پر ڈھٹی چڑھائی گئی۔ مجلس کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی بھی جلوس کے انتظامات میں موجود تھے۔ جلوس کے دوران پولیس کا وسیع تر بندوبست دیکھا گیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کی قیادت میں چار مینار زون ڈی سی پی کرن کھارے پربھاکر نے انتظامات کی نگرانی کی۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سی سی کیمرے بھی دیکھے گئے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوس کے ہمراہ اویسی ہاسپٹل کی ایمبولینس گاڑیاں اور طبی عملہ بھی موجود تھا۔ عزاداروں کو بروقت امداد بھی پہنچائی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے چار مینار کے پاس بی بی کے علم پر ڈھٹی کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر پولیس تفسیر اقبال کے علاوہ ڈی سی پی چار مینار زون کرن کھارے پربھاکر، ٹریفک پولیس کے عہدیدار موجود تھے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے بتایا کہ یوم عاشورہ کا بی بی کا علم جلوس پرامن ہے۔ 2000 پولیس ملازمین کو تعینات کیا گیا تھا۔ شیعہ تنظیموں کی جانب سے مکمل تعاون کیا گیا ہے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ڈرون کے ذریعے بھی نظر رکھی گئی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر آج شہر کے مختلف مقامات پر پکوان کا اہتمام اور مشروبات کی تقسیم دیکھی گئی۔ بالخصوص بی بی کے علم جلوس کے گزرگاہوں کے علاوہ نئے پل تا گلزار ہاؤس کے پاس بھی کئی مقامات پر پکوان ہوئے۔ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی مشروبات تقسیم کیے گئے۔ جگہ جگہ سبیلیں بھی دیکھی گئی۔ چونٹی شاہ صاحب کی مسجد کٹل گولے میں حسب روایت یوم عاشورہ کے موقع پر سالانہ جلسے شہدائے کربلا اور اجتماعی دعائے اجتماع منعقد ہوا۔ مولانا سید قادر محی الدین جنید پاشا فرزند احمد پاشا قادری نے نگرانی کی۔ جلسے کے بعد حسب روایت دعائے عاشورہ پڑھائی گئی۔ جنید پاشا نے بتایا کہ گزشتہ 45 سالوں سے اس جلسے و دعا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس سے عامت المسلمین کی کثیر تعداد مستفید ہو رہی ہے۔ وزینت العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلماتہ تامات کلیہا اسألک سلامات برحمتک یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وهو حسبی ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین حکومت تلنگانہ نے انتظامی سطح پر بڑے پیمانے پر آئی اے ایس اور دیگر سینئر عہدیداروں کے تبادلے اور نئی تعیناتیوں کے احکام جاری کیے ہیں۔ جاری کردہ سرکاری حکم کے مطابق شیلجا رامائر کو پرنسپل سیکرٹری ماحولیات، جنگلات، سائنس و ٹیکنالوجی محکمہ مقرر کرتے ہوئے محکمہ اوقاف کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ ندیم احمد کو پرنسپل سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جی اے ٹی تعینات کیا گیا ہے اور اقلیتی بہبود محکمے کی اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اسی طرح این سریدھر کو وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری، راہل بجا کو پرنسپل سیکرٹری ڈیزاسٹر مینجمنٹ،
और बी अजीत रेड्डी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन्वेस्ट तेलंगाना मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने इसके अलावा मुख्तलिफ महकमेजात में कई अहदेदारों को इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें हैंडलूम्स, टेक्सटाइल, माइंस एंड जियोलॉजी, टूरिज्म, GHMDA और ग्रेटर मुरगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बशमूल दीगर अहम महकमे शामिल हैं। हुकूमत तेलंगाना ने सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। वो के रामकृष्ण राव की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे, जो 30 जून 2026 को रिटायर्ड हो रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे अमूमी इंतजामिया ने GORT नंबर 911 जारी करते हुए तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ हुकूमत तेलंगाना ने सीनियर IAS ऑफिसर के रामकृष्ण राव को उनकी 30 जून 2026 को रिटायरमेंट के बाद वजीर आला के मुशीर, एडवाइजर और एक्स अफिशो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने GORT नंबर 912 जारी कर दिया है। तकर्री की शराइत व ज़वाबित बाद में अलहदा तौर पर जारी किए जाएंगे। यह हुक्म गवर्नर तेलंगाना के नाम से जारी किया गया है। रियासत के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इंदिरम्मा अवामी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी फलाह बहबूद है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में BCSC और ST बहबूद महकमों का जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुतालिका वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में नायब वज़ीर आला ने हिदायत दी कि वेलफेयर स्कूल्स, हॉस्टल्स और रिहायशी इदारों की मरम्मत 1 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाए। 2023 से ज़ेर इल्तिवा तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के मरम्मती बिलों की फौरी अदायगी की जाए। उन्होंने कहा कि तलबा से मुताल्लिक़ बिलों की बरवक्त पेशकशी में गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आला ने स्टडी सर्कल्स को मज़ीद मजबूत बनाने, UPSC और दीगर मुसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करने, राजीव युवा विकासम के बशमूल खुद रोज़गार स्कीमों पर मौसर अमल दरामद की भी हिदायत दी। तमाम अजला में डॉक्टर BR अम्बेडकर नॉलेज सेंटर्स कायम करने की तजावीज़ भी तलब की गई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने वेलफेयर इदारों में डाइट चार्जेस में 40% और कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% का इजाफा किया है। इनकी अदायगी भी बाकायदगी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तलबा को बेहतर बुनियादी सहूलतें और मेयारी तालीम माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुक्काम ने इजलास में बताया कि 2014 से अब तक स्टडी सर्कल के जरिए 1810 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। इनमें तकरीबन 1000 उम्मीदवार मौजूदा हुकूमत के दौर में मुंतखब हुए। इजलास में मुख्तलिफ फलाह स्कीमों, रिहायशी स्कूल्स के लिए ज़ेर इल्तिवा फंड्स की जल्द इजराई की भी दरख्वास्त की गई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने परखी में BRS हल्के जनरल बॉडी इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर दलितों, कबायलियों और गरीब किसानों के असाइंड ज़मीनें कब्जा करने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए और किसानों, ख़वातीन और दीगर तबक़ात को धोखा दिया। उनका कहना था कि ज़मीन न देने वाले किसानों पर मुकदमे दर्ज करके उन्हें हरासा किया जा रहा है। KTR ने कहा, अगर हुकूमत संजीदा है तो पहले ज़मीनों के पट्टे दे, मुनासिब मुआवजा अदा करें, किसानों की रजामंदी से ही ज़मीनें हासिल करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि BRS मुतासरा किसानों के साथ खड़ी रहेगी, ज़रूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। KTR ने पार्टी की रुकनसाजी मुहिम पर भी कारकुनों की रहनुमाई की, खबरदार किया कि अगर कारकुनों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए तो जिम्मेदार अहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఎన్ని झूठ మాటలు తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు తులం బంగారం కేసీఆర్ లక్షిస్తుండు లక్ష మీదికెళ్ళి తులం బంగారం ఇస్తా అన్నాడు ఇచ్చిండా నేను చెప్తే కదా మెడల పుస్తలతాడు భద్రంగా ఉంచుకోరి అంతే ఆయన ఇచ్చేటోడు కాదు ఎత్తుకపోయేటోడు తులం బంగారం కాదు తులం ఇనుము కూడా ఇయ్యాడు తులం ఇనుము కూడా ఇయ్యాడు ఆయన అందుకే మిమ్మల్ని నేను ప్రార్థించేది ఒక్కసారి మోసపోతే మన తప్పు మోసం చేసినోని తప్పు అవుతుంది రెండోసారి కూడా మోసపోతే ఈసారి మన తప్పు అవుతుంది పరిగిలో నేను మళ్ళీ దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా ఎన్నిక ఎప్పుడు వచ్చినా ఎగరాల్సింది ఈ గులాబీ జెండానే లేకపోతే న్యాయం జరగదు మళ్ళీ తిరిగి అవకాశం రాదు అందుకే దయచేసి మీకు ప్రార్థించేది చిన్న చిన్న పంచాయతీలు ఉంటాయి ఊళ్ళల్లో కానీ అవన్నీ పక్కకు పెట్టాలి ఒక్కసారి కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి కావాలి అని మనం తీర్మానించుకున్న తర్వాత
కేసీఆర్ గారు తిరిగి తప్పకుండా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో రావాలే. तेलंगाना में पार्टी को इख्तिदार तक पहुंचाने के मकसद से बीजेपी की कौमी क़यादत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। इसी सिलसिले में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन 28 जून से 3 रोज़ा दौरे तेलंगाना करेंगे। रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते बताया कि कौमी सदर अपने दौरे के दौरान शमशाबाद से मुख्तलिफ अजला में नए पार्टी दफातर का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद में बूथ सदूर के इजलास, अवामी नुमाइंदों से मुलाकात, तलबा के कॉन्क्लेव, वरंगल में कबायली नुमाइंदों और बूथ सदूर के इजलास के अलावा घटकेसर में रियासती वर्किंग कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद सिर्फ पार्टी को तंजीमी तौर पर मज़ीद मजबूत बनाना है। इस मौके पर तुंगाभद्रा नदी के पानी के मसले पर भी तशवीश ज़ाहिर करते हुए रियासती हुकूमत से तेलंगाना के आबी हुकूक पर वजाहत का मुतालबा किया गया। साथ ही कहा गया कि NRC और शहरियत तरमीमी कानून CAA के मामले पर कांग्रेस और MIM वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने अयोध्या राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में मुबैना माली बेज़ाब्तियों पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए बीजेपी और मरकजी क़यादत से वजाहत तलब की है। उन्होंने कहा, अगरचे ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय ने किसी भी बदनुमानी से इनकार किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की SIT ने उनसे वाबस्ता अफराद को गिरफ्तार किया। उनका इल्ज़ाम था कि राम मंदिर की तामीर के नाम पर मुल्क भर के अवाम से जज्बाती अपील के जरिए चंदे जमा किए गए। तकरीबन 200 करोड़ रुपए की बदनुमानी हुई। रुकन पार्लियामेंट ने मुतालबा किया कि इस मामले पर वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर दाखिला, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अवाम के सामने हक़ाइक़ को पेश करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा को ओहदों से हटाना काफ़ी नहीं, बल्कि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने मुख्तलिफ रियासतों में अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त की, जबकि नीट इम्तिहान के पेपर लीक मामले में भी मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान को बचाया गया। BRS पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर T जीवन रेड्डी ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमत पर तलबा मुखालिफ पॉलिसी अख्तियार करने का इल्ज़ाम किया। उन्होंने कहा, हुकूमत की मुद्दत का निफ्स हिस्सा गुजर चुका है, अब उसके पास सिर्फ आधी मुद्दत बाकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जियो नंबर 0 को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी ना होने पर तलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हुकूमत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने में नाकाम रही है। जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने कॉलेजेस की फीस बाज अदायगी किए बगैर जियो 0 नाफिज कर दिया। इसकी वजह से तलबा दाखिलों के वक्त फीस अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने तलबा को बेहतर तालीमी मौके फराहम किए थे, जबकि मौजूदा हुकूमत तालीमी निज़ाम को कमज़ोर कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 30 माह में न कोई गुरुकुल स्कूल कायम हुआ, न ही रोज़गार के वादे पूरे किए गए। यंग इंडिया रेसिडेंशियल स्कूल के नाम पर सिर्फ पुराने BC रिहायशी स्कूल्स का नाम तब्दील किया जा रहा है। बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने साबिक़ रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम के हमरा उस्मान बाग का दौरा किया, जहां मस्जिद अब्बासिया के करीब मजलिस की नुमाइंदगी पर SW ड्रेन और सड़क की तामीर के काम का आगाज़ किया गया। इसकी मालियत 28 लाख रुपए बताई जाती है। रुकन असम्बली ने बताया कि सदर मजलिस अनकरीब इन तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। BRS पार्टी के साबिक़ रुकन असम्बली बी सुमन ने पार्टी के कारगुजार सदर KTR से उनकी खमगाह पहुंचकर मुलाकात की। सिंगारेनी से मुतल्लिक़ बी सुमन के रिमार्क पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जुमेरात को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। रिहाई के बाद सुमन ने KTR से मुलाकात की। गचिबौली के पास AMB फ्लाईओवर पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। बताया जाता है कि स्कूटर पर सवार 2 नौजवान मुबैना तौर पर रॉन्ग साइड जा रहे थे, बुलेट गाड़ी से टकरा गए। स्कूटर पर सवार 2 नौजवान श्रीकांत और विट्ठल की बरसरे मौका मौत हो गई, जबकि बुलेट राइडर विनोद शदीद जख्मी हुआ। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाक़या जुमे की सुबह हफीज़पेट गच्चीबौली राहदारी AMB फ्लाईओवर पर पेश आया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाशों को और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के माचल्ला में हुए सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक माचल्ला के नागारावनम के पास तूफान गाड़ी खड़ी हुई लारी से टकरा गई। तूफान गाड़ी में सवार 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। महलूकीन हैदराबाद से कानीगिरी जा रहे थे। यह हादसा पेश आया।
माइलुकीन की शिनाख्त वेंकटेश्वरलू, केसराधा, सत्यनारायणा और अंजलि की हैसियत से की गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली को नाकाम बना दिया गया। कस्टम हुकाम ने मलेशिया के कुआलालंपुर से पहुंचे 2 मुसाफिरीन के कब्जे से तकरीबन 2 किलो 271 ग्राम 24 कैरेट सोने के बिस्किट को जब्त किया है। बताया गया है कि पेस्ट की शक्ल में सोना लाया गया था और उसे छोटे पैकेट्स में कमर के पट्टे में बांधा गया था। इस सोने की कीमत 3 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जाती है। मुकामी कस्टम हुकाम इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं। अतापुर पुलिस ने कम कीमत में सोने की फरोख्त का लालच देकर धोखा देने वाले गोल्डमैन सूर्या को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि सूर्या खुद को चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर का करीबी साथी बताकर लालच दिया करता था कि बाहर से उसे कम कीमत पर सोना मिलता है। इस सिलसिले में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत करने वाले शख्स ने इल्जाम लगाया कि 32 लाख रुपए की सूर्या ने धोखाधड़ी की है और उसे सोना नहीं दिया गया। अतापुर पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए तहकीकात की और सूर्या को गिरफ्तार किया। चादरघाट पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 23 जून को सीता रामाराव की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो 72 जेब बस में लालाजार चौराहा मलकपेट के पास सवार हुए, फुटबोर्ड के पास उनकी तिलाई चेन छीन ली गई। उन्होंने फौरी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV का जायजा लेते हुए पुराने सारिक कामले रतन की शिनाख्त की, जो गुमंगड़ू बस्ती हबीबनगर का साकिन बताया गया है। पुलिस ने सारिक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 2.5 तोले की मसरूक़ा तिलाई चेन बरामद कर ली गई है। सारिक के 3 साथी सलमान, इस्माइल और इब्राहिम मफरूर बताए गए हैं। उनकी तलाश जारी है। कट्टू सीतारामराव बोल के उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं महबूब नगर में। उन्होंने रहते चैतन्यपुरी में रहते। उन्होंने डेली ट्रेन में जाके आते। सेम ऐसी 23 तारीख को ऐसे टाइम पे वो ट्रेन उतार के बस चढ़ के जाने के टाइम पे उनका 2.5 तोला गोल्ड चेन चोरी करे। उसमें वो उन्होंने आके कंप्लेंट दिया तो केस बुक करके मैं और प्रेम टाइम जाके वेरीफाई CCTV वेरीफाई करे तो CCTV में एक पुराना अफेंडर आइडेंटिफाई हुआ। उनका नाम कामले रतन। उन्होंने रहते अपना मल्लेपल्ली में रहते मांगर बस्ती में। दोनों और 3 जने पूरा 4 जने मिलके ये चोरी का विषय है। उसमें इन्हों आइडेंटिफाई हुआ। इनको पकड़ के उनसे 2.5 तोला गोल्ड चेन रिकवरी करे। आज सुबह उनको अरेस्ट करे। रियासती फूड सेफ्टी महकमे की जानिब से रेस्टोरेंट, फूड सप्लाई करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कुकटपल्ली में जोमेटो के गोदाम की तलाशी ली गई। बताया जाता है कि यहाँ से एक्सपायर अशिया भी दस्तियाब हुई हैं। फूड प्लानट रेस्टोरेंट चंदानगर की भी जांच की गई। यहाँ भी कवायद की खिलाफ वर्जी देखी गई। इन रेस्टोरेंट और इदारे को नोटिस जारी की गई है। दूसरी तरफ एचफास्ट ने मल्लेपल्ली में वाक़े फेमस फिश की जांच की है। जांच के दौरान ट्रेड लाइसेंस की मुद्दत खत्म पाई गई। ये पता चला कि ग़िज़ाई अशिया की तैयारी में मसनूई रंग को इस्तेमाल किया जा रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद ग़िज़ाई अशिया के नमूने मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी
प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। तारीखी बीबी के अलम जुलूस में ज़ायरीन और अज़ादारों की कसीर शिरकत। जलसे याद हुसैन और शहदाए करबला का इनेकाद। पुलिस के वसीतर इंतजामात। रियासत में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तबादले। संजय जाजू रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी। साबिक चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव वजीर आला के मुशीर मुकर्रर। इंद्रम्मा अवामी हुकूमत की अवलीन तरजीह अवामी फलाह बहबूद। वेलफेयर स्कूल्स, हॉस्टल्स और रिहायशी इदारों की मरम्मत 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी की जाए। नायब वज़ीर आला का जायजा इजलास। कांग्रेस हुकूमत दलितों, कबायलियों और गरीब किसानों की असाइंड अराजियात पर कब्जे में मुलव्विस। किसानों की रजामंदी से अराजी हासिल करें, KTR का मुतालबा। गच्चीबौली AMB फ्लाई ओवर पर दिलखराज सड़क हादसा। स्कूटर और बुलेट गाड़ी का तसादुम, 2 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के माचरला में भी हादसे में हैदराबाद के 4 अफराद की मौत। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकली नाकाम। 3 करोड़ 36 लाख रुपए के बिस्किट जब्त। धोखाधड़ी में मुलव्विस गोल्डमैन सूर्या भी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।